Hello and welcome. This is the third part of the chapter Era of One Party Dominance. In the second part, we have analyzed the results of the first three general elections of India. तो उन तीनों जनरल इलेक्शंस का जो रिजल्ट था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, सेकंड ऑफ 1957 एंड थर्ड ऑफ 1962. तो इन तीनों ही इलेक्शंस में कांग्रेस अचीव्ड ऑलमोस्ट 3/4 मेजॉरिटी इन द लोकसभा और स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी. तो टिल 1967 कांग्रेस का ही डोमिनेंस पूरे कंट्री में हमको दिखता है. इसी को वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं या कांग्रेस सिस्टम कहते हैं. तो इस कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, बट इट वाज वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर, इट वाज नॉट अनडेमोक्रेटिक. एंड वन एग्जांपल इन वर्ल्ड that is similar to Congress dominance in India is that of African National Congress in South Africa after independence. तो नेचर तो हमें पता लग गया है कांग्रेस डोमिनेंस का. अब जो है वो हमको इस देखना है द कॉजेज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. नाउ द कॉजेज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन बोर्ड एग्जाम्स इट इज आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स और ये जो क्वेश्चन है it is a very much asked question in the board exams that analyze the causes of the dominance of Congress in the early years of Indian politics in the period after independence, why Congress was able to maintain its dominance for almost 3 decades. So this question is a very important question and that's why I'm giving you the whole content of this answer. These are the 6 headings that will go in this answer. So 6 marks, 6 headings. First is the inheritance of the national movement. Second, proper organization and popularity. Third, social coalition of all classes, caste, religious groups. Then coalition of different ideologies. First past the post system. Management of the conflict and factions. ठीक है, तो ये 6 हेडिंग्स आपकी जाएंगी और इन 6 हेडिंग्स को आपको एक्सप्लेन करना है. 4-5 लाइंस में भी अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आंसर प्रॉपर निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन होना क्या चाहिए. देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि व्हेन यू गिव द आंसर इन दिस फॉर्मेट, heading and explanation, you write anything in the explanation and you assume that the examiner is not going to read. Examiners definitely may not read the whole answer line by line, but they will read at least 1 or 2 points. ओके, इतना तो लोग पढ़ते ही हैं और उसमें अगर आप एकदम जनरल सा लिख देंगे तो वो सिर्फ एक आंसर को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो बाकी आंसर्स को भी इम्पैक्ट करता है. फिर वो इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपने पूरा पेपर ही ऐसे जनरल लिखा होगा, कुछ भी कंटेंट में सॉलिड नहीं है. ओके, सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्लेनेशन को भी अपने प्रॉपर ही रखिए. So let's see what should be your explanation. Causes of Congress dominance, inheritance of the national movement. This is the first point. Okay, the first heading of your answer. So inheritance of national movement का मतलब ये हुआ that Congress was carrying the legacy of the freedom struggle of India. In the freedom struggle of India, Congress was in the forefront. So all the leaders of the Congress had participated in the different mass movements in India. Okay, and the fight against the British was mainly planned and led by the Congress in India. ठीक है, तो जो लोग थे जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे या नॉन अलाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे या क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन लीडर्स ने इन कांग्रेस लीडर्स को अपने फ्यूचर लीडर्स के रूप में देखा था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो ये लोग होंगे जो हमारे चुने हुए लीडर्स होंगे और ये गवर्नमेंट में होंगे और इनकी बात हम मानेंगे. समझ में आया? तो ये जो लोग थे, they had sacrificed their everything on one call of these leaders. They had so much faith in these leaders. So Congress carried this legacy with itself. Fine. So these leaders therefore had an advantage over other parties in the country. Fine. So this inheritance, this legacy of the national movement was a definite advantage in favor of Congress. Second is proper organization and popularity. Now Congress was formed in 1885. Okay, and it was formed initially as a pressure group.
ठीक है, धीरे धीरे ये फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुई और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को इसने लीड करना शुरू किया। नाउ सिंस 1885 कांग्रेस हैड मेड इट्स ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस की जो पार्टी की जो कार्यालय होते थे, जो ऑफिसेस होते थे, वो डिफरेंट रीजन्स में अप टू द विलेज लेवल इट वाज एग्जिस्टिंग। ओके, सो इट हैड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो मैकेनिज्म था, जो काम करने का तरीका था कि डिसीजन मेकिंग पार्टी में कैसे होगी, किस तरह से उस डिसीजन को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन कौन से वर्कर्स कहाँ कहाँ किस तरह के काम करेंगे, ये सब ऑलरेडी लेड डाउन था। ठीक है, तो बहुत सी चीजें जो थी वो पहले से डिसाइडेड थी एंड दैट इज द रीजन वाई कांग्रेस हैड एन एडवांटेज। जब बाकी पार्टीज अपना कैंपेन शुरू भी नहीं की थी, when the other parties were just establishing themselves, Congress had began its campaign. Okay, so it had the next thing, it not only was first on this task of starting gearing up for election, the other thing was that it was well connected to the people at the grassroots level. Okay, the organizational network down to the local level made it a grassroots party. It was well connected to the people in the villages, in the remote areas. Everybody identified the freedom struggle with Congress, and that is the reason why they had many people were not even knowing any other party, they were knowing only Congress. Okay, so it was one thing that gave Congress an advantage over the other parties. It was not only very popular, it had a proper organization which made it function in a very systematic manner. Okay, now we see the third point. Third point is a coalition of all social and economic classes. Fine. Now Congress started, I told you that it was established in 1885 as a pressure group. Pressure group on the British government to get some concessions for the Indian people, especially the high class industrialist और ये जो educated class थी उसके लिए. So initially, to begin with, Congress was dominated by the foreign educated intelligentsia. ठीक है, जो ऐसे मुट्ठी लोग कांग्रेस को डोमिनेट करते थे, जो कि विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं इंडिया की, तो ऐसे लोगों के अंदर कांग्रेस थी। लेकिन जैसे ही गांधी जी की एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिक्स में और मास मूवमेंट्स शुरू होते हैं, then the control of Congress and the leadership of the Congress started getting shifted to, या shifted to भी मैं नहीं कहूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उस लीडरशिप ने अपना अटेंशन शिफ्ट किया टुवर्ड्स द मासेस। ठीक है, तो वहाँ से जो ग्रास रूट लेवल के लीडर्स थे वो निकल कर आए और उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की। ठीक है, तब ये पार्टी हो जाती है एक मास पार्टी। इट बिकेम अ मास पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि सारे सोशल क्लासेस के लोग भी थे और सारी इकोनॉमिक क्लासेस के लोग थे। जब यहाँ पे सोशल क्लासेस कहा जा रहा है तो इसका मतलब दो चीज़ एकदम क्लियर है, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट। ठीक है, तो सारे रीजन के, सारे रिलीजन के, सारे कास्ट के लोग कांग्रेस में शामिल थे। इकोनॉमिक क्लासेस जब कहा जा रहा है तो यहाँ पे पुअर, रिच एंड मिडिल। Okay, so there were peasants, there were industrialists, there were urban dwellers, there were villagers, workers, owners, middle, lower, upper classes and all caste. So Congress was a coalition of all these caste and economic classes. That gave Congress an advantage. अभी क्या, अगर आप इस समय की पॉलिटिक्स से उस समय की कांग्रेस को कंट्रास्ट करेंगे तो इस समय क्या है कि पार्टीज जो हैं वो या तो वो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं या वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा वोट जो है वो डिवाइडेड हो गया। यहाँ पे जब आप सारी कम्युनिटीज़ और सारी सोशल क्लासेस व्हेन दे सी देयर रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस इटसेल्फ, देन ऑल द वोट्स आर गोइंग टू कांग्रेस।
Okay, so that is why Congress got such huge number of seats. It was not only a coalition of all social and economic classes, it was a coalition of different ideologies also. देखिए आइडियोलॉजीज का मतलब होता है कि वे ऑफ थिंकिंग, एक स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग होती है. तो आइडियोलॉजीज होती हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी हैं, पैसिफिस्ट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, रेडिकल्स हैं. अब ये आइडियोलॉजी, एक एक आइडियोलॉजी का मतलब क्या है ये यहाँ पे समझाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ईच वन ऑफ दीज कैन इज अ थ्योरी इन इटसेल्फ, हैज अ लॉट ऑफ थ्योरी इन इटसेल्फ. तो ये सारा यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है. आपने 11th क्लास में बहुत इसका पढ़ा है एंड आई बिलीव कि आपको पता होगा. फाइन. तो ये सारी आइडियोलॉजीज फाउंड देयर प्लेस इन कांग्रेस. अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो शायद बहुत लोग नहीं बताते हैं, और वो आपकी बुक में ही है. यू सी द कवर पेज ऑफ योर बुक, ऑफ योर सेकेंड बुक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एंड जस्ट फ्लिप द कवर पेज. तो जो कवर पेज का बैक साइड है, फर्स्ट जो पहला कवर पेज है आपकी बुक का, उसका जो बैक साइड है उसको देखिए. उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि so many parties have emerged from Congress. So Congress later actually gave birth to a lot of parties on the basis of different ideologies. ठीक है, तो that shows that Congress was actually a group of so many ideologies. And one very astonishing fact is that during the freedom struggle, जब हमारा freedom struggle चल रहा था, तो बहुत सी ऐसी पार्टीज थी, छोटी छोटी पार्टीज, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक था, उनका अपना अलग आइडियोलॉजिकल बुक जिसपे वो बेस और जिसपे वो फंक्शन करते थे, मगर उसके साथ ही वो कांग्रेस के भी पार्ट थे. तो कांग्रेस comprised of many small parties. बाद में कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड करके उसमें एक ये क्लॉज लाया गया कि कांग्रेस के अंदर कोई और पार्टीज नहीं हो सकती हैं, और तब ये पार्टीज जो थी वो कांग्रेस से अलग हुई. इनमें एक बहुत बड़ा नाम सोशलिस्ट पार्टी का है जो आपके सिलेबस में भी है, आई टेल यू. सो ये इस तरह से थी. तो व्हेन ऑल द आइडियोलॉजीज आर फाइंडिंग देयर प्लेस इन कांग्रेस, वेदर दे आर रिवोल्यूशनरीज और दे आर पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट मतलब जो पीस को पसंद करते हैं और पीस फुल रिजोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, वो पैसिफिस्ट. कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स होते हैं जो कि बहुत आउट ऑफ द वे जाकर सॉल्यूशंस की बात करते हैं. एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, राइट लेफ्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर व्हेन आई वाज टीचिंग what do you mean by rightist and the leftist party. तो कांग्रेस in this manner, since it was an amalgamation of all the ideologies, that's why Congress was called a centrist party. और अगर मैं आपको मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो इट वाज अ सोशलिस्ट सेंट्रिस्ट पार्टी, जिसका सोशलिस्ट इंक्लिनेशन था, पर वो सेंट्रिस्ट थी क्योंकि ये सारी आइडियोलॉजीज को मिलाकर लेकर चलती थी. ठीक है, उसके बाद आते हैं इस वाले फैक्टर पे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. नाउ दिस इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यू हैव रेड इट, डन इट इन क्लास 11th, which is adopted in India for elections to लोक सभा एंड विधान सभा. ठीक है, तो इस सिस्टम में ये होता है कि द कैंडिडेट हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट गेट्स इलेक्टेड. फाइन, ये है ये सिस्टम कि जिसने, अगर मान लीजिए 100 वोट हैं और किसी एक कैंडिडेट ने 15 वोट्स पाए, पर बाकी ने उसके कम पाए, बाकी सब 14, 13, 12, 10 ऐसे पाए, तो उसमें जीता कौन? उसमें जीता वो जिसने 15 वोट पाए. ओके, सो कांग्रेस विक्ट्री वाज आर्टिफिशियली boosted by this system of election. If you analyze the results properly, Congress got 3/4 of the seats in Lok Sabha, but seats 3/4 मिली थी और वोट हाफ से भी कम मिले थे. Okay, but it did not get even half of the votes. Congress obtained only 45% of the votes and managed to get 75% of the seats. ये कैसे होता है?
ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए 100 वोट हैं, ओके, और उसमें से 10 कैंडिडेट्स हैं, एक को मिलता है 15 वोट, बाकी सबको उससे 10 या 12 या 20 भी मान लीजिए, बाकी सबको उससे कम मिलते हैं वोट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जीत रहा है वो 15 वोट, केवल 15 वोट पाके जीत रहा है, जबकि मेजॉरिटी 100 की कितनी है, 100 की मेजॉरिटी है 51। तो इसका मतलब कि जो कैंडिडेट 15 वोट पाया वो जीत गया, लेकिन और उसको सीट मिल गई, तो जो जीता है कैंडिडेट उसको 15 वोट मिले। लेकिन जो कैंडिडेट्स हारे हैं, ऑल दोज हु स्टैंड डिफीटेड इन दिस इलेक्शन, टोटली इफ यू टोटल इट, दे गॉट 85% of the votes. So 15% vote has won and 85% of the votes lost. This is how, when this happens in all the constituencies, several constituencies all together, then the candidates who have won, अगर उनका नंबर ऑफ शेयर ऑफ वोट काउंट करेंगे तो उनका जो वोट परसेंटेज है वो तो कम होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा हो गई। Because of this, it happened that Congress got almost 3/4 of the seats in Lok Sabha, but it got less than 45% of the vote। और यही इसका सीधा उल्टा हुआ था CPI के केस में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको टोटल वोट्स का 10% मिला था, उसका वोट शेयर 10% था, बट सीट शेयर जो था वो 2% भी नहीं था। ओके, तो ये हो जाता है, इसकी वजह से हमको दिखता है कि कांग्रेस डोमिनेंस है, बट एक्चुअली इन रियलिटी आधे से ज़्यादा लोग डिड नॉट वोट फॉर कांग्रेस, 50% से भी ज़्यादा लोग डिड नॉट वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस वन बिकॉज द वोट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज वाज डिवाइडेड, ठीक है। अब ये लास्ट जो आपका रीजन है वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि आप जिसको कहते हैं कि जिसमें कि फैक्शंस को बर्दाश्त किया जाता था। आप जो टॉलरेंस की बात आजकल सुनते हैं, टॉलरेंस वाला वर्ड, तो उस समय की कांग्रेस पे ये टॉलरेंस वर्ड बड़ा सूट करता है। दे टॉलरेटेड द डिफरेंट ओपिनियंस, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, फैक्शंस इमर्जिंग विद इन द कांग्रेस, and during the politics of that time, if you see, there were many instances where Congress leaders, the member of parliaments, ministers were criticized by their own party। मतलब कांग्रेस के MPs ही खड़े होकर जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना तक हुआ था। ओके, और ये ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ था। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कांग्रेस फेस्ड in the beginning years of Indian politics, Congress faced opposition from within। और यही ये जो आपका ये कार्टून है, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत से बच्चे मुझसे इसका मतलब पूछने आते हैं कि ये क्या है। ओके, सो दिस कार्टून रिप्रेजेंट्स दैट ओनली, दैट जवाहरलाल नेहरू is being dragged behind by Nehru himself। So Congress faced opposition from within। जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे वो ही कांग्रेस नेहरू को क्रिटिसाइज करते थे और उनकी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते थे ऑन पॉलिसीज। ओके, ये है इसका मैनेजमेंट। और लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने किसी मेंबर को बाहर निकाल दिया हो या बाहर का रास्ता दिखा दिया हो। दीज फैक्शंस वर टॉलरेटेड, और इन फैक्शंस की बात सुनी जाती थी और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे उसको लेकर आया जाता था। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता था बिकॉज द लीडर्स ऑफ दैट टाइम डिड द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ठीक है। दे हैड देयर प्रिंसिपल्स, देयर आइडियोलॉजी, and totally their politics was based on their principles and ideologies। So when they criticized one leader of the Congress or the Congress government, any member of the Congress, when they criticized their own government, it was because of the principles they held, it was because of the views of the people they led, and that is why the leaders listened to them।
तो लीडर्स जो कांग्रेस के थे वो हमेशा सबकी बातों को, कांग्रेस के अंदर जो भी इस तरह से आवाजें उठनी थी उसको सुनते थे और उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे, उसको मैनेज करते थे, अकोमोडेट करते थे सक्सेसफुली. इट वाज अकोमोडेटेड सक्सेसफुली. Okay, so anything that the opposition wanted to say already found a place in Congress. तो अगर आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने जाएंगे कि कांग्रेस ये नहीं करती वो नहीं करती, तो वो किस बेसिस पे करेंगे? कांग्रेस तो सारे मैनेजमेंट को अंदर ही, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अंदर ही मैनेज कर ले रही है. ओके, सो दीज वर द 6 रीजंस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द dominance of Congress till 1967. Okay, now we'll see the role of opposition during this period. If you remember the map that we analyzed in the last video, in the first and the second part of this chapter, in that map you have seen that the size of the opposition was very small. Congress was getting almost 3/4 majority, तो 1/4 size था opposition का. अब इतना small opposition कर क्या सकता है? वो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. सो इट इज समटाइम्स said that opposition was very tiny and it did not play any effective role, but this would be wrong to say. And what I am saying just now is represented in this cartoon only, कि ये पूरा opposition है, ये इस गवर्नमेंट जो कि पेड़ जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं. पर ये लोग यहाँ कंफर्टेबली बैठे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठे हैं कि बेटा दम लगाओ, तुम हमें नहीं गिरा पाओगे. ओके, सो ये इस कार्टून में दिखाया है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट स्टिल इफ वी लुक क्लोजली, ऑपोजिशन डिड प्ले अ वेरी constructive role during this period. Though they got very token representation, small representation, their presence maintained the democratic fabric of the country. ये हमेशा याद रखिए कि अगर ऑपोजिशन ना हो तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिक्टेटोरियल हो जाती है. तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ऑपोजिशन प्ले करता है. अगर ऑपोजिशन ना हो, you will never come to know about the faults, about the defects in the policies of the government. The party that is ruling the country may initiate the policies, may form the policies that will suit their electoral agenda, not the interest of the nation. Understood? So opposition has a very important role to play in any politics, and wise people in the country always say that at least listen to the opposition. Don't silence the opposition. Don't mock the opposition. कभी भी opposition की मौकरी नहीं करनी चाहिए. अगर आप opposition की मौकरी करेंगे तो आप अपना नुकसान करते हैं. Because then the government will keep on doing what they want to do, which actually advances their electoral agenda. अंडरस्टूड? तो ये चाहे भले ही बहुत छोटा ऑपोजिशन था, पर उन्होंने हर कदम पे गवर्नमेंट को उनकी कमियों का एहसास दिलाया कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. सो दैट रोल वॉज प्लेड बाय ऑपोजिशन इन दैट एरा. ओके, दे ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड प्रिंसिपल्ड criticism that was based on principles. What is right, what is wrong? Where are you compromising with the promises you made with the people? Where are you compromising with the principles of governance, of democracy? Okay, so the opposition make the government realize this. Fine. They kept the ruling party under check, changed the balance power within the Congress. Okay. In the early years, see, this is very important. In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. उस समय के जो leaders थे और जो politics थी वो आज की politics से बहुत different थी. उस समय के leaders एक दूसरे की opposite parties में रहते थे, मगर फिर भी कभी disrespect नहीं show किया किसी ने.
ओके, दे हैड अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो ये समझते थे कि अगर आप हमारे सामने विरोध में खड़े हैं तो वो इसलिए नहीं खड़े हैं कि आपको हमसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वो इसलिए खड़े हैं कि आप जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी से उठकर आप आए हैं, जिस ग्रुप से उठकर आप आए हैं, आप उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज योर ड्यूटी। योर ड्यूटी इज टू रिप्रेजेंट द ग्रुप दैट you have come from those people who have chosen you. Okay, so this, they believed in this thing. So it was always a principled criticism, a lot of mutual respect. The interim government, I have already shown you the picture of the interim government. वो जो पिक आपको दिखाई थी उसमें मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि कुछ लीडर्स देखिए जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं आते थे। लीडर्स लाइक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हु वाज अ फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, अ राइटिस्ट पार्टी। ठीक है, लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर, हु हैड लॉन्च्ड मूवमेंट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर क्लासेस इन द सोसाइटी, और जिन्होंने खुलकर कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कांग्रेस के अंदर के जो काम करने कामकाज के तरीके हैं उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया था। ठीक है, तो ये फिर भी इनको इनवाइट किया गया टू कम एंड ज्वाइन द कैबिनेट। ऐसे एग्जाम्पल्स दिखने में अब तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इसकी, कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाए कि आप आइए और कैबिनेट में हमारे मेंबर बनिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। सो दिस इज द रोल प्लेड बाय ऑपोजिशन। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रोल दैट द ऑपोजिशन प्लेड इन दैट पीरियड of Indian politics. So sometimes it is also asked for 4 marks. That's why I gave you here 4 points to write. So these are 4 points for the role of opposition during the period of Congress dominance. Okay. Now in the last video of this chapter, I'll do one more video for this chapter, and that would be to explain the 4 pages that are there, yellow pages, and 4 yellow pages in the chapter where you have 4 parties. Fine. Socialist Party, Communist Party, Bharatiya Janasangh, and Swatantra Party. Lots and lots of questions, 1 markers and 2 markers, are asked from these 4 pages. So we cannot leave them. Okay, so do watch the next video also on this chapter. I'll be uploading very soon. Thank you so much for watching. I hope you understood this portion well. Thank you so much. Bye bye.